برطانوی فلم براڈ شیٹ کی سربراہ کاوے موسوی نے پاکستانی براڈ شیٹ کمیشن کی انکوائری رپورٹ مسترد کر دی۔ کہا کہ یہ رپورٹ عدلیہ کی تاریخ پر سیاہ دھبا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید معافی مانگے، نہیں تو قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ کاوے موسوی کا بڑا اعلان۔ اپنے بیان میں کاوے موسوی کا کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید نے رپورٹ میں مجھے سزا یافتہ قرار دیا، لیکن سول توہین سے کرمنل ریکارڈ نہیں بنتا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کو اندازہ ہی نہیں کہ کرمنل اور سول توہین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید 7 دن میں معافی مانگے، ورنہ قانونی کارروائی شروع کر دوں گا۔ جسٹس ریٹائرڈ نے معافی نہ مانگی تو لندن ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کاوے موسوی کا کہنا تھا کہ معافی وزیر اعلیٰ زیدی اور رابطے میں رہے جوڈیشل کمپلیکس میں کسی ایک شخص کا بیان نہیں لیا گیا، جبکہ اہم گواہ میں تھا۔ رپورٹ میں حقائق چھپانے کی کوشش کی اور یہ رپورٹ عدلیہ کی تاریخ پر سیاہ دھبا ہے۔ ارکان یا تو اس رپورٹ کی مذمت کریں یا پھر عوام کے سامنے سر جھکا کر چلیں۔ ای سی سی کی جانب سے بجلی بلوں پر عائد نیلم جہلم سرچارج ختم ہونے کے باوجود صارفین سے وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے نیلم جہلم منصوبے کے فعال ہونے تک بجلی کے بلوں پر 10 پیسہ فی یونٹ سرچارج لگایا گیا تھا، جسے ای سی سی نے ختم کر دیا تھا۔ تاہم بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں صارفین سے یہ سرچارج وصول کر رہی تھی۔ حالیہ بلوں میں بھی یہ سرچارج لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت توانائی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فیصلے سے قبل بل شائع ہو چکے تھے۔ سرچارج وصولی کی اگلی ماہ ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایوان سے مستعفی ہونے پر پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا۔ پی ڈی ایم میں شامل 8 جماعتوں کو 15 دن بعد پیپلز پارٹی نے لال جھنڈی دکھا دی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہی منسوخ ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے پر اختلافات پیدا ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے ایوان سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے پیپلز پارٹی سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی، جس پر سابق صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ معاملہ سی ای سی میں لے جائیں گے اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس بارے میں پی ڈی ایم کی قیادت کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 5 اپریل کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا تھا، لیکن اسے آج منسوخ کر دیا گیا۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ادارے قانون کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں، کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ تحقیقات میں منی لانڈرنگ اور سٹہ مافیا کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سٹہ بازوں نے 392 بینک اکاؤنٹس میں 667 ارب روپے کے لین دین کا پتہ چلا ہے۔ اس بے نامی اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں چینی کی سپلائی کے لیے طریقہ موجود نہیں تھا۔ پنجاب میں چینی کی ایکس مل پرائس 80 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی۔ پنجاب میں شوگر کین کمشنر کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور نواز شریف کا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مولانا فضل الرحمان سے فون پر طبیعت سے متعلق خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان کا دونوں رہنماؤں کی جانب سے خیریت دریافت کرنے پر شکریہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے امیر جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان سے فون پر طبیعت سے آگاہی حاصل کی اور کہا کہ میں آپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ناسازی طبیعت کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امیر جمعیت علماء اسلام فی سے رابطہ کیا۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ گول کرنے کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی نے حکومت سے ہاتھ ملا لیا۔ بی این پی کو ساتھ ملا کر سینٹ میں اپوزیشن کا عہدہ لیا گیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی پیپلز پارٹی پر یہ الگار، کہا کہ جانتے ہیں کہ کون کون سی چال چلی جا رہی ہے۔ نواز شریف اسمبلی میں نہیں، ان کو استعفوں سے نتھی کرنا درست نہیں۔ بلاول بھٹو ابھی بچے ہیں، سیاست سیکھیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا کہ پی ڈی ایم کو قائم کرنے کا مقصد بہت واضح تھا، ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے لیے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی، کیونکہ اس حکومت کی حیثیت کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ دھاندلی سے جیت کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے تمام مراحل گزارنے کے بعد
जब फैसला कुन वक्त आया तो बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से हाथ मिला लिया। हमने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को पूरी तरह सपोर्ट किया, जिससे वो कामयाब हुए। चेयरमैन के इंतखाब पर भी यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया गया। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इसमें हमारा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। इस बात पर सदमा हुआ कि हमारी मुशावरत के बगैर पीपल्स पार्टी ने यकतरफा तौर पर हुक्मरान जमात के साथ मिलकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हासिल कर लिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का फ़ोन किन मौज़ूआत पर बातचीत की गई, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद शराजी से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, 2 दिन पहले स्टीयरिंग कमेटी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया था और उस इजलास में ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस जो है वो भेज दिया जाएगा। इस मामले पर जो है अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और एमल वली खान के दरमियान मुल्क की मजबूरी सूरत-ए-हाल पर जो है तबादला ख्याल हुआ है। इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एमल वली खान से उनके बारे में समझाया, वली खान की सेहतयाबी से मुतालिक जो है भी दरियाफ्त किया है। मेरे को बता चलूं कि कल हमें देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा जो है वो एक मरतबा फिर से सरगर्म हो चुके हैं। नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदे हैं, उन्होंने भी कल जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को कॉल की और उन्होंने भी मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बातचीत की और मौलाना फजल रहमान की खैर भी दरियाफ्त की और साथ साथ उन्होंने मशवरा भी दिया कि सियासत होती रहेगी, आप अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखें। जी अच्छा शिराजी, बताइएगा क्या पीडीएम के हवाले से आइंदा के लय अमल पर भी बातचीत हुई है? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मामला जो है वो इन दिनों जोरों पर है और पीक पॉइंट पर है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दरारें पड़ गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शीरा तो जो है वो बिखर गया है और हम देखते आए हैं कि इन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा है उनकी जानिब से बयानी गोलाबारी जो है वो जारी है और इसलिए पूरी काल का राय के मुताबिक मकसद भी यही था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बातचीत की जाए, क्योंकि आज यानी 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना था और ये फैसला करना था कि क्या हमने इस्तीफे देने हैं या नहीं। तो जो कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो इजलास जो है वो मुहीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। तो इस टेलीफोनिक बातचीत में उस हवाले से भी बातचीत हुई और मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है उस पर भी तफसील जो है बातचीत की गई। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शराजी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुगर मिल्स का चीनी 85 रुपये फी किलो फरोख्त करने से इनकार। जावेद कियानी ने कहा कि मिल्स पर 17% सेल्स टैक्स की छूट दी जाए, फिर रेट कम कर देंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान जावेद कियानी का कहना था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में फी किलो चीनी 118 रुपये होनी चाहिए। इम्पोर्टेड चीनी पर टैक्स छूट दी गई है, हमें क्यों नहीं टैक्स छूट दी जाती? हमारे हाल पर रहम किया जाए, गलत फहमियों की वजह से एक्शन लिया जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो दिफा करते रहेंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अपील भी की। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के अंदर एहतिकाफ, सहरी और इफ्तार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मसाजिद, इमाम बारगाहों में नमाज के लिए कालीन, दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एनसीओसी की जानिब से मसाजिद, इमाम बारगाह इंतज़ामिया को SOPs पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की गई हैं। एनसीओसी के मुताबिक सड़कों और फुटपाथ पर नमाज पढ़ना ममनू होगा। मसाजिद, इमाम बारगाहों में वज़ू करने पर पाबंदी होगी। नमाजी हजरात घर से वज़ू करके आएंगे। फ्लू, खांसी में मुब्तला नमाजी मसाजिद, इमाम बारगाह में ना आएँ। सफ़ेबंदी के दौरान नमाजियों के माबैन 6 फुट का फासला रखा जाए। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी है। मजीद 81 अफराद जहां बाग, हलाकतों की मजमूई तादाद 14,778 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5,020 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.02% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,87,908 हो गई है, जिनमें से एक्टिव केसेस की तादाद 60,072 है, जबकि 3,568 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
कुछ बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि अप्रैल में बारिशें मामूल से कम होंगी, दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात की वार्निंग। महकमे मौसमियात के मुताबिक माह अप्रैल का आउटलुक जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अप्रैल में बारिशों के 1 या 2 सिलसिले मुतवक्के हैं, जबकि रमज़ानुल मुबारक में बालाई इलाकों का दर्जा हरारत नॉर्मल और ज़ेरी इलाकों का कतरे ज़्यादा रहेगा। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गिर्द आलूद आवाहों से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचेगा। और याद रहे कि कराची में हफ्ते के रोज़ 74 साल के बाद दूसरा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। नाज़रीन, यहाँ पर बताएं कि रावलपिंडी में रवात के करीब खाना बदोशों की झुग्गियों में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। खाना बदोशों की झुग्गियाँ जलकर राख का ढेर बन गई हैं। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी रवात का इलाका है जहाँ पर खाना बदोशों की झुग्गियां जो है वो बड़ी तादाद में आतिशज़दगी की नजर हो चुकी हैं, और आतिशज़दगी के वाक़े में इसकी जो वजूहात थी वो ताहाल जो वो मालूम नहीं की जा सकी। रेस्क्यू रावलपिंडी की अमदादी टीमें जो है वो जयादसा पर पहुंच चुकी है और उनकी जानिब से आग पर काबू पाने के बाद जो वो कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया, और आग पर काबू पाने के बाद जो है वो किसी किस्म की जानी नुकसान की तार इतलात जो वो मौसूल नहीं हुई। लेकिन खाना बदोशों की जो झुग्गियां थी वो बड़ी तादाद में जो है वो आग की नजर हुई, जिसके बाद उनका लाखों मालियत का जो सामान था वो जलकर खाकस्तर हो गया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमारे साथ रहिएगा, मजीद भी आपसे कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, महंगी गाड़ियों पर सफर करने वाले भी अब हो जाएं तैयार। गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनीज ने मुल्क भर में 36 गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह अब मुल्क भर के अंदर जो है वो महंगाई का तूफान जो वो बरपा था, उसके साथ ही जो है वो महंगी गाड़ियों पर सफर करने वालों को लिए भी जो है वो बड़ा एक शाखाना जो है वो तैयार कर लिया गया है। गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनीज ने मुल्क भर में 36 गाड़ियों की कीमतों में जो है वो होशरबा इजाफा कर दिया। होंडा कंपनी ने मुख्तलिफ इकसाम की 11 कंपनियों की जो गाड़ियां थी उनकी कीमतों में 7 लाख रुपए तक जो वो इजाफा कर दिया है। होंडा सिविक टर्बो की कीमत जो है वो 37,99,000 से बढ़ाकर 46,90,000 जो वो कर दी गई है, जबकि फा कंपनी ने भी मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियों की कीमतों में 4,10,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। फा V2 गाड़ी की कीमत 12,89,000 से बढ़ाकर 16,90,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह यूनाइटेड कंपनी ने भी 2 लाख, जबकि टोयोटा कंपनी ने 3 लाख रुपए तक जो है वो बड़ा इजाफा कर दिया है। यूनाइटेड ब्रावो की कीमत 8,95,000 से बढ़ाकर 10,99,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। टोयोटा कंपनी ने 30,69,000 की कीमत की जो गाड़ी थी उसकी कीमत बढ़ाकर 33,69,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह सिविक जो कंपनी थी उसने भी अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि सुजुकी कंपनी ने भी गाड़ियों की कीमतों में 5 लाख रुपए तक इजाफा कर दिया है। टोयोटा कल्टस AGS गाड़ी की कीमत जो वो 16,68,000 से बढ़ाकर 21,30,000 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई है। अब ये बड़ी जो है वो एक अभी तक जितनी भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा है, अभी तक रिकॉर्ड इजाफा ये सामने है कि 7 लाख रुपए तक मजबूती तौर पर गाड़ी की कीमतों में जो वो इजाफा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि भारत के एहतजाजी किसानों का हरियाणा के वज़ीर आला का घेराव। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। CM मनोहर को सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा। मोदी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत देने से इनकार पर गल्ला मंडियों के बाहर गंदम लाने वालों का रश लग गया। जलसा करने वाले आने के हरियाणा के वज़ीर आला को मुश्ताइल मुजाहिरीन के घेराव का सामना करना पड़ा। CM मनोहर को सख्त सिक्योरिटी में निकाल कर जाना पड़ा। पुलिस के साथ झड़पों में कई अफराद जख्मी भी हुए। मोदी सरकार मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बात करने से न कतराए। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा कि मोदी इमरान खान को 23 मार्च की मुबारकबाद दे सकता है तो कश्मीर पर बात भी कर सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह AS दौलत का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर को बुनियादी मसला करार देने से भारत को मसला नहीं होना चाहिए। याद रहे कि बयान एक ऐसे वक्त में आया जब पाक भारत ताल्लुकात बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान रवां साल NCOC पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने पर इत्तफाक हुआ है। नाज़रीन, हासिलपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग का वाक़या। फायरिंग के बायस खातून जहां बाक हो गई है। कत्ल की वारदात थाना सिटी की हदूद गुलशन आबाद में पेश आई। मोटरसाइकिल सवार खातून को गोली मारकर फरार होने में कामयाब हो गया। शहरियों में खौफ व हरास। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा।
जी फैसल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये मियाँ इसका मियाँ ही था। ये अभी रिपोर्ट जो है पुलिस ने कर दिया है, तो उसने ही घरेलू नाचाकी थी इन लोगों की, बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा था। ये कल रात में इनका अभी घर से में झगड़ा होकर ये औरत जो थी ये जा रही थी अपने मेके अपने माँ बाप की तरफ, तो जी वो बाइक पे आया है और उसने सर इसको जो है वो फायर मार दिया है। औरत जो है वो मौका पे रही जो है वो जान बहक हो गई है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि पता चल सका है कि किसने ये गोली मारी है? इसके मियाँ है जी, इसका शोहर है, ये इसका शोहर ही था जिसने इसे गोली मारी है। घर में पहले ये लड़ाई हुई है, तो ये जो है उससे नाराज होकर अपने माँ बाप के घर जा रही थी, तो पीछे से उसने बाइक पे आकर इसको फिर मनाता आ रहा है, लेकिन ये नहीं मानी तो उसने फिर इसे फायर मार दिया। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमें तफसीलात से आगाह कर दिया। नाज़रीन, कबीरवाला M4 नज़ दरखाना इंटरचेंज कार और ट्रक में तसादुम, हादसे में एक शख्स जहाँ भाग, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ भाग शख्स की शिनाख्त 44 साला नासिर महमूद वल्द अब्दुल रशीद, जबकि जख्मी में 25 साला आबिद वल्द अब्दुल करीम और 40 साला आसिफ वल्द सादिक शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त पहुँचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद दी और तमाम जख्मी अफराद को सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत ताहाल नासाज है। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह पर इलाज भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शिराज अहमद शिराजी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, जमात उलमा इस्लाम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत जो है वो ताहाल नासाज है। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद अपनी रिहाइश गाह पर जो है इलाज भी जारी है। ज़राए के मुताबिक मुसलसल बुखार के बाइस जो है गुज़िश्ता रात ड्रिप लगाई गई थी, तो हम अभी तक जो है मौलाना फजलुर रहमान की सेहत जो है वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स को मौलाना फजलुर रहमान को जो है अपने मुकम्मल आराम करने का मशवरा भी दिया है। मौलाना फजलुर रहमान 3 दिन पहले जो है इस्माइल खान में थे, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद अपनी रिहाइश गाह पर जो है शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर भी वो ताहाल जो है सेहतियाब न हो सके, तो हम कल हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मौलाना नवाज शरीफ की जानिब से जो है मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता भी किया गया। उन्होंने भी मौलाना साहब की सेहत जो है वो दरियाफ्त की और साथ साथ उनको ये मशवरा भी दिया कि सियासत तो है वो तो होती रहेगी, आप जो है अपनी सेहत की फिक्र करें और मुकम्मल आराम करें ताकि आप जल्द अज जल्द जो है वो सेहतियाब हो सकें। अच्छा शिराज अहमद शिराजी, बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत क्यों ख़राब हुई, किस वजह से? देखिए, उनको बुखार की शिकायत है, शदीद बुखार ने उनको अपनी लपेट में ले लिया है और बुखार के बाइस जो है वो चलने फिरने से ही काफी हो गए हैं और शदीद बुखार ने उनको लपेट में ले लिया है। डॉक्टर की जानिब से उनको मुकम्मल आराम की हिदायत की गई है। कल रात उनको ड्रिप भी लगाई गई थी और उसके बाद उनका जो इलाज है वो अभी तक चल रहा है, लेकिन उनकी सेहत जो है वो ताहाल ठीक नहीं हुई और बुखार जो है उसमें कमी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शुजाबाद के नवाही इलाके सिकंदराबाद में कब्रिस्तान में कबर खोद कर चिल्ला काटने वाले पीर को थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सलीम नामी जाली पीर ने कब्रिस्तान में कबर खोद कर कबर के गिर्द कैंप लगा रखा था। चारपाई, चाय नमाज और दीगर तस्बीहात का सामान भी कब्र में रखा हुआ था। सलीम नामी शख्स गुज़श्ता 3 रोज़ से कब्र में चिल्ला काट रहा था। थाना सिटी पुलिस ने मुखबरी और अहले इलाका की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छापा मार कर कब्र में चिल्ला काटने वाले सलीम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार शिद्दत से जारी हैं। खानेवाल में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज़ हुसैन। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल वैगन स्टैंड पर, जहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। भाई SOPs के हवाले से क्या बताएंगे आप? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि खानेवाल शहर में जो वैगन स्टैंड है, जो दूसरी वैगनें हैं, SOPs का खिलाफ वर्जी उन्होंने की हुई है। जो PSV बसेस जो आ रही हैं दूसरे शहरों से खानेवाल में, उनमें जो लोग हैं उनको इस तरह से खचा खच बसों में भर दिया जैसे भेड़ बकरियों को लाद कर कहीं लेके जाया जाता है। अगर कोरोना केसेस की खानेवाल शहर में बात करें तो खानेवाल शहर में इनके जो कोरोना के जो वार हैं वो शिद्दत से जारी हैं। अभी हमारे जो खानेवाल के एक मारूफ आई सर्जन थे डॉक्टर हसन पराचा, वो भी कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। उसके साथ साथ अब खानेवाल शहर में तकरीबन इस तक 940 के करीब
जो हैं वो पेशेंट जो रिपोर्ट हुए हैं केस। और अगर खानेवाल शहर के हम लोगों की बात करें तो खानेवाल के जो लोग हैं वो बिल्कुल किसी भी किस्म का इस पर अमल दरामद नहीं करें, ना तो कोई मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना ही और चौकों में जो लोग खड़े हैं वो सब मास्क वगैरह का कुछ करते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन इसमें इजाफा हो रहा है। और खानेवाल के शहरियों को चाहिए कि इस पर अमल दरामद करें और जो हमारी जो है इस बीमारी से ख़ुद भी महफूज और लोगों को भी महफूज करें। और जो DC खानेवाल से मेरा मुतालबा है कि वो इस SOPs के ऊपर लोगों से अमल दरामद करवाएं। जो PSV बसेज़ हैं उसके साथ साथ ये जो गाड़ी हैं, जो बसेज़ हैं और वैगन हैं, इनमें जो लोग को बिल्कुल बिठाया जा रहा, साथ साथ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा जाता है, ना ही उसमें उनको मास्क पहनाया जाता है, ना ही उनको कोई सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम करके जिससे लोग अपने हाथ वाश करें और इस जो मूजी मर्ज से बच सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि SOPs को तो हवा में उड़ा दिया गया है और उनका यही कहना है कि आला हुकाम से कि डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी बाज़ार में निकलें और SOPs पर अमल दरामद कराएं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि राजनपुर के इलाका पुछाद और दरिया कच्छा की खास सौगात तरबूज गर्मियां शुरू होते ही बाजारों की जीनत बन जाता है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं समीउल्लाह गबूल की इस रिपोर्ट में। गर्मी की आमद आते ही दर्जा हरारत बढ़ने लगे तो ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जो जिस्म को ठंडा रख सके और पानी की कमी भी ना होने दे। और जिसमें पानी की मुनासिब मिकदार को बरकरार रखने की बात हो तो तरबूज से बेहतर क्या हो सकता है। तरबूज बेहतरीन मशरूब है, अगर अमीरों को पता चल जाए तो गरीबों को खाने तक ना मिले। हिंदवाना सारे इलाके दे विच बहु काश्त थी है, ज्यादा काश्त है, ये जिस्म का पानी पूरा करने और ठंडा भी है। सारे इलाके बहुत शौक नाल लोग खंदन। हिंदवाना सारे इलाके दे विच बेहतरीन तो बेहतरीन सौगात हिंदवाना है। तरबूज पानी के हसूल का बेहतरीन जरिया है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसके जरिए जज़्बा बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबूल, JNN न्यूज़, राजनपुर।